So hello and welcome guys, and today we are back with a video. This is the class number 2 of C++ series, and in which we cover certain topics related to C++. So if you are not started with this playlist, that is, please watch the first class of this particular video, and this one is the second class. We will cover many things in this video, and so let's get started without wasting any time. So today our topic, I'll tell you about some of the header files and what is the header files in C++, which we have discussed in the introduction part. So if you can see on my particular code blocks IDE, you can see that hash include. So what it do in this particular program? So this is the main case. So hash include is used in particular C++ to import the header files. Always we use hash include to import the header files. The reason to introduce IO stream in front of you here, you can see hash include IO stream. So this is the particular header file which I am including, that is input output stream. I have discussed it about in the previous video also, and this particular program, it will gives us some of the functions like cout, cin, which are defined in this header file. So I have included in this program so that I can use cout and cin. This is the role of header files also. We then we comes to particular operators which are very important in C++, and we should use the operators many a times. In many operations we use the particular operators in C++. So operators are used for producing output by various types of calculation on two or more inputs. So they are used to perform some operations in C++. First of all, we will talk about the arithmetic operators. So for any mathematical operation, we will use the arithmetic operators. So let us define the arithmetic operators here, and I will code it, then you will be able to get it more. So I'll delete it first. Okay, we are good to go. So first of all, I will give the heading here, that is the you can see arithmetic operators to perform uh, calculations or mathematical operation. Good to go. Mathematical operations. uh, just a space in between. Okay, a space is required here. And just a second. Okay, where is my code blocks? This is okay. So mathematical operations. What are our mathematical operations? You all know addition, subtraction, multiplication, division, and many more. So I'll tell you each and everything about it. I'll do an output here, that is C out, and I'll write here. What I write here is that um, the value of you can see a plus b. The okay, first of all, what I do is मैं एक काम करता हूँ, मैं दो वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ इंटीजर टाइप के. मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से करते हैं इन माय प्रीवियस वीडियो. अगर नहीं देखी है तो यार देख लेना एक बार जाके. सो और अगर आपको वो सब आता है तो आप इससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं. सो द एडिशन ऑफ ए एंड बी, सो ये मेरे को फाइंड आउट करना है. तो मैं ऐसे भी यार इन्हें यूज कर सकता हूँ. सो मैं जस्ट क्या करूँगा, तो मैं एक सिंपल सी बात है यार, मैं प्लस लगा दूंगा एंड देन मेरा काम खत्म हो जाएगा. ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन.
ऐसे ही मैं सेम एज मैं एक काम करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ तो बार बार मेरे को नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन पे अगर वर्क करें, सब्ट्रैक्शन, सो दिस इज द सब्ट्रैक्शन पार्ट। ऐसे मैं सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ। उसके बाद मैं बात करूँ मैं मल्टीप्लिकेशन की, सो ये सब सिंपल चीज़ें हैं, आपको एक ही गो में आ जाएंगी। Multiplication of a and b, so this would be there. Okay, then C out and whatever. Okay, so after that we have division. So these are particular operators for the particular calculations. You can see that. Okay, we these are basic operations which you also know if you are familiar with the mathematics. We also have a modulo operator. Okay, so the modulo हम कह सकते हैं इसे modulo of a and b। तो ये करता क्या है, ये क्या करता है कि वो a को डिवाइड करेगा b से एंड जो रिमाइंडर आएगा उसे रिटर्न कर देता है, बस यही है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो मैं इंक्रीमेंट की बात कर लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इंक्रीमेंटेशन की बात कर लेता हूँ। सो इंक्रीमेंटेशन भी यार दो तरीके से हो सकता है हमारा। सो इसमें क्या होगा कि अगर मैं रिटर्न करता हूँ a प्लस प्लस को, सो फर्स्ट ये क्या करेगा अभी कि फर्स्ट इट रिटर्न वैल्यू ऑफ a and increment it, means increment it by 1। सो ये अभी क्या रिटर्न करेगा, ये 10 रिटर्न करने वाला है एंड देन उसके बाद अगर मैं दोबारा a को अगर रिटर्न करवाता हूँ तो ये 11 उसके बाद में रिटर्न करेगा। सो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस प्लस प्लस। सेम थिंग अगर मैं बात करूं, अगर मैं सेम चीज की बात करूं, सो मैं यहाँ पे माइनस माइनस कर देता हूँ, देखिए एक डिक्रीमेंट माना जाता है एंड ये क्या करेगा, ये डिक्रीमेंट करेगा। डिक्रीमेंट, सो डिक्रीमेंट में क्या होगा यार हमारा, ये क्या करेगा, पहले तो ये एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा एंड आफ्टर दैट उसमें डिक्रीमेंट कर देगा। तो ऐसा कुछ सीन है। बट अगर मैं सेम लाइन लिखता हूँ और मैं इस बार प्लस प्लस पहले लिख के और ए लिखता हूँ तो क्या होगा, तो ये उल्टा काम करेगा। क्या करेगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ए में इंक्रीमेंटेशन करेगा, आफ्टर दैट रिटर्न करेगा। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से करने वाला है। जस्ट अ सेकेंड, इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ ए। मैं जो आउटपुट दिखाने वाला हूँ यार, तो आपको पता चलेगा कि मैं फिर कर क्या रहा हूँ। सो आफ्टर ऑल फिर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और डिक्रीमेंट में भी यार ये सेम ही है। सो एक बार मैं इसे लिख देता हूँ, इंक्रीमेंटेड बाय 1, नोट इंक्रीमेंट, इस बार डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट इट बाय 1 एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ ए। सो ऐसा कुछ सीन है। अब मेरे को एक और चीज़ करनी है यार इनमें, अगर मैं इसे ऐसे ही प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये सभी की जो a प्लस बी की वैल्यू है, a माइनस बी की है, वो एक लाइन में सभी को प्रिंट कर देगा और हमें समझ नहीं आएगा कि यार ये हुआ क्या है। सो मेरे को एंड लाइन लगाना पड़ेगा। मैं इसके बारे में बात करूंगा आपसे कि ये एंडल होता क्या है, इसका मतलब एंड लाइन होता है, तो इसके बारे में भी मैं बात करूंगा आपसे मैनिपुलेटर्स में। बट आफ्टर ऑल आप अभी इसे ऐसे ही बस ये लाइन को डिसकंटिन्यू करता है और नेक्स्ट लाइन से शुरू करता है, इतना बात समझ लो।
ओके, सो नाउ गुड टू गो। ये हमारा कोड हुआ है, मैं इसे रन करके एक बार देख लेता हूँ। सो आप देख सकते हो यार इसे। ओके, सो मेरे को यहाँ पे स्पेस देना चाहिए। I'll save now. Okay, I'll build and rerun. And now you can see एडिशन आ गया हमारा, सब्ट्रैक्शन आ गया माइनस में, मल्टीप्लिकेशन 120, डिवीजन हमारा 0 आया है, मॉड्यूलो ऑफ a प्लस बी 10 आया है, एंड आफ्टर दैट 10 आया है, 11, फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं। सो ये हमारी कुछ वैल्यूज आई हैं यार यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब सिंपल है और आप कर सकते हो यार इन्हें, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। सो अब मेरे को क्या करना है, अभी हमने किसकी बात की है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हमने बात की है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स की किस तरीके से बात करेंगे, मैं काम करता हूँ यार, इसे कॉपी कर लेता हूँ कोड को, क्योंकि मेरे को आपको ये डिस्क्रिप्शन एंड नोट्स में देना होता है। मैं एक फाइल बना रहा हूँ वन नोट की, जिसमें कि आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी यार, बहुत अच्छे से हमने वो डिज़ाइन की है। ओके, ये हमारा कोड हो गया। अभी हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करेंगे आगे, ठीक है। अब ये हो चुका है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करेंगे यार, वो कंपैरिजन करेंगे दो वैल्यूज में, सिंपल है। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का भी कुछ खास नहीं है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करने वाले हैं, वो भी एक टाइप से, एक मिनट, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर, स्पेलिंग्स में यार बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके बाद में अगर कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे अगर दोनों नंबर इक्वल हैं उसके लिए है, कोई नंबर ग्रेटर है दूसरे से उसके लिए है, कोई लेसर है उसके लिए भी है, लेसर देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो कई सारे टाइप के हमारे पास ऑपरेटर्स हो जाते हैं, नॉट इक्वल्स टू है। सो ये कुछ हमें करना है। स्टार्ट करते हैं यार पहले ही ऑपरेटर से जो कि ग्रेटर देन है, और स्टार्ट करते हैं इक्वल्स टू से, कि क्या ए इक्वल्स टू बी है, तो हम ऐसे यूज करने वाले हैं इसे। सो सी आउट एक कमांड लिख देता हूँ, बाकी कॉपी कर दूंगा मैं। सो द वैल्यू ऑफ A and B, the values of A and B are equal. Okay. देन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं A को डबल इक्वल्स टू से दिखाने वाला हूँ कि वो B के इक्वल है या नहीं है, और मैं एक एंडल भी दे देता हूँ यहाँ पे ताकि वो नेक्स्ट लाइन से अगला क्वेश्चन शुरू हो। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये डबल इक्वल्स टू चेक कर रहा है कि A और B ग्रेटर हैं या नहीं है। सो उसी फॉर्म में हमें यहाँ पे चेक करना है, तो हम सभी देखेंगे, फिर आउटपुट देखेंगे किस फॉर्म में ये देता है, एंड हम डिस्कशन करेंगे उस पर भी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं कई सारे इन्हें कर लेता हूँ यार। ओके, सो अब मैं एक बार ग्रेटर देन चेक कर लेता हूँ, ए ग्रेटर देन बी, क्या ये सही है, ए ग्रेटर देन बी, या मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ए लेस देन बी है, या मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ए लेस देन इक्वल्स बी है, क्या ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है।
ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब है या तो ये इससे बड़ा हो या इसके इक्वल हो, जब जाके ये ट्रू होती है कंडीशन। ये या तो छोटा हो ए उससे या इक्वल हो, ये जब कंडीशन आती है। अब एक और काम हमारा यार रह गया, और नॉट इक्वल। सपोज ये दोनों इक्वल नहीं है, कैसे चेक करूंगा? नहीं है इक्वल दोनों, तो एक एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू बी। तो इस तरीके से यार हम चेक करते हैं इनका कंपैरिजन। यही कुछ हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, इसे भी रन कर लेता हूं मैं। ओके, देन मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, बिल्ड एंड रन। Okay, it is showing me an error. ओके, ये जो देखो अभी हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है ये पर्टिकुलर, सो ये ऑपरेटर्स की तरह काम ना करें, तो मैं एक काम करता हूँ, इन्हें ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बनती तो यही है, क्योंकि वो बिल्कुल सेम एज वैसे ही सिंबल्स हैं जो कि हमारे ऑपरेशंस में भी काम आते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। ओके, नाउ आई विल बिल्ड एंड रन, यू कैन सी। सो ये हमें क्या करता है यार? Okay, just a second. I hope I am visible now because शायद मेरा कनेक्शन लॉस हुआ था। ओके, नाउ विजिबल। सो आप देख रहे होगे यार, ये हमें क्या करता है? अगर फॉल्स है तो जीरो रिटर्न करेगा, अगर ट्रू है तो वन रिटर्न करता है। तो इस फॉर्म में ये हमें पर्टिकुलर आउटपुट देता है। सो ये यार कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे, सिंपल है यार, मतलब कुछ थ्योरी तो इजी है शुरुआत की, आगे आगे जैसे जाएंगे तो हम एक अच्छे लेवल पे जाएंगे। एक काम करता हूँ, मैं इसका भी कोड कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे को ये भी देना है आपको। ओके, वन नॉट, वेयर इज माय वन नॉट? ये रहा मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर का पार्ट, एंड यहाँ पे मैंने आपको दे दिया। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर्स किया था ना हमने। अब यार एक बार असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी देख लेते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं हम। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करेंगे यार? असाइन करेंगे वैल्यूज। सो इक्वल्स टू हमारा क्या होगा? वो असाइनमेंट ऑपरेटर में आएगा। इसीलिए हम जब भी कंडीशन चेक करते हैं इक्वल्स टू वाली, तो डबल इक्वल्स टू लगाते हैं, बिकॉज सिंगल इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर को असाइन कर दिया गया है, ऐसा कह दो। ओके, ये कुछ एग्जांपल है। अगर मैं इंट की वैल्यू रख रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पे आगे कर ही देता हूँ। ओके, अगर मैं इंट ए को एक वैल्यू दे रहा हूँ 10, और मैं इंट बी को वैल्यू दे रहा हूँ 105, सो कैसे असाइन कर रहा हूँ मैं? इस इक्वल्स टू ऑपरेटर की मदद से मैं इसे असाइन कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वल्स टू ऑपरेटर। आई एम गिविंग द असाइनिंग द वैल्यू टू अ वेरिएबल, so variable hold a data with the help of an assignment operator which assign the value to it। so ऐसा कुछ सीन है असाइनमेंट ऑपरेटर का। so ये सिंपल था, ये ज़्यादा हम इस पे बात नहीं करेंगे, ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। ओके, सो अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूँ अब, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स पे भी बात कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो लॉजिकल फंक्शंस जब भी हम चलाते हैं, आपने अगर अपनी ट्वेल्थ में देखा होगा आपने शायद, मेरे हिसाब से लॉजिक गेट्स के बारे में सुना होगा आपने। सो मैं उसमें ही बताने वाला हूँ। तो लॉजिकल ऑपरेशन जब भी करवाते हैं,
ये इफ एल्स में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है जब भी हम इफ एल्स कंडीशन से करते हैं, बट अभी मैं बता देता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत अच्छा काम है लॉजिकल ऑपरेटर्स का, मैं बहुत यूज़ होता है ये लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो फर्स्ट हमारा होता है, इसे हम ऐसे दिखाते हैं, दैट इज एंड ऑपरेटर। मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, सो ये है हमारा लॉजिकल एंड। ये है हमारा लॉजिकल और एक नॉट ऑपरेटर भी होता है हमारे पास। सो उसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क से दिखाते हैं। सो ये हो गया हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब यार इनके ट्रुथ टेबल आपको पता होगा एंड का, मैं एक बार बता देता हूँ। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं, मीन्स यहाँ पे मैंने एंड लगाया है, इधर राइट हैंड वाली भी कंडीशन ट्रू है, लेफ्ट हैंड वाली भी कंडीशन ट्रू है, देन ये ट्रू रिटर्न करता है। आफ्टर ऑल ये जब ही रिटर्न ट्रू करेगा, बाकी जो भी केसेस होंगे उसमें फॉल्स रिटर्न करेगा। दोनों ट्रू हैं, वन 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 देता है, पता होगा आपको। और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू है या दोनों कंडीशन ट्रू है वो ट्रू देगा, बाकी अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है वो फॉल्स देगा। जस्ट अ सेकेंड, लॉजिकल, ओके। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है उसे फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है उसे ट्रू रिटर्न करेगा। देख लेते हैं हम कुछ, जस्ट अ सेकेंड। तो मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ। इंट a equals to 10, इंट b equals to 12। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एंड यूज करूंगा इस टाइम पे। सो यूजिंग एंड ऑपरेटर। सो देखना यार यूज कैसे करता हूँ मैं इसे। तो अगर मैं बात करता हूँ, क्या ए मेरा इक्वल है बी के, तो मैं साफ साफ कहूंगा कि नहीं, नहीं इक्वल नहीं है। एंड क्या मेरा ए लेसर देन बी है, तो ये दो कंडीशन हमारी ट्रू है। तो यहाँ दो कंडीशन मैंने इसे दे दी। ये आगे आगे हम सीखेंगे कि किस तरीके से काम आती हैं ये कंडीशंस, ठीक है। सो इसका आई होप आपको आंसर एज्यूम कर पा रहे होगे कि किस तरीके से आंसर आने वाला है। तो आंसर बताऊँ कैसे आएगा। ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, बट यार एक फॉल्स एक ट्रू, एंड हमेशा दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होती हैं जब ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये ऑफ कोर्स जीरो रिटर्न करने वाला है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं और ऑपरेटर यूज करता हूँ इन्हीं के बीच में, सेम कंडीशन। तो क्या काम करेगा इस बार, ऑफ कोर्स करेगा। नेक्स्ट वन मैं नोट ऑपरेटर यूज करता हूँ यार। तो नोट ऑपरेटर सिंपल है, उसमें दो कंडीशंस नहीं चाहिए मेरे को। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं ऐसे लगा दूंगा। तो ये मैंने क्या किया, ये जस्ट मैंने ए इक्वल्स टू बी है, नहीं है, फॉल्स है, बट ये क्या रिटर्न करने वाला है, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे बिल्ड करके आपको रन करके दिखा देता हूँ। ओके, अगेन आई एम गेटिंग, ओके, invalid operand types of bool to binary operator। जस्ट अ सेकेंड यार, अभी हम कुछ करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा। आप सभी ध्यान रखना यार, क्योंकि वो बूल रिटर्न करने वाला है, और ये जो सी आउट में यूज़ होते हैं हमारे, ये एक तरीके से आप देख सकते हैं, तो ये
ऑपरेटर्स ही हैं। अब हम रन करके देखते हैं एक बार, तो आप देख सकते हैं एंड जीरो देगा और वन देगा एंड नॉट। हालांकि वो कंडीशन नहीं है इक्वल्स टू बी वाली फॉल्स है, बट वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ऐसा कुछ है। सो ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ आप सभी के लिए यार, अच्छा रहेगा। वन नोट का यार मैं लिंक दे दूंगा आपको, इस बार डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो उसमें हम यार उसे कवर कर लेंगे। ओके डन। बिल्ट इन डेटा टाइप्स की यार बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कुछ बिल्ट इन होते हैं जो कि हमारी लाइब्रेरीज में पहले से ही जिसने भी ये पर्टिकुलर लैंग्वेज बनाई है तो उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। और इससे फ़ायदा ये रहता है कि यार हम डायरेक्टली उन्हें यूज़ कर सकते हैं। वो यूज़र डिफाइंड नहीं है, वो बिल्ट इन है। सो बिल्ट इन फंक्शंस का हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डेटा टाइप्स जैसे कि इंट है, फ्लोट है एंड मेनी मोर आदि। सो इंट है हमारा इंटीजर के लिए यूज़ होता है, फ्लोट होता है। और ओके जब भी आप कोई भी डेसिमल नंबर अगर असाइन करते हो किसी भी वेरिएबल को, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक डबल माना जाता है। मैं बताऊंगा कि टाइप कास्टिंग भी कैसे करते हैं यार इसमें। मेक अ फ्लो। सो एक रेफरेंस वेरिएबल भी होता है यार हमारे पास, तो उसकी मैं बात करने वाला हूँ अभी। पहले हम बात कर लेते हैं रेफरेंस वेरिएबल की। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? ये जितने भी यार चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, इंट एंड आगे हम फ्लोट भी यूज़ करेंगे एंड मेन्यू। सो उसमें दिक्कत नहीं लेनी है हमें। सो हम क्या करने वाले, रेफरेंस वेरिएबल को समझेंगे अभी। मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं फ्लोट नाम से एक एक्स बना लेता हूँ और मैं उसकी वैल्यू रख देता हूँ 455। ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं फ्लोट और ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बना दिया वाई और उसे इक्वल टू रख दिया एक्स। अच्छा ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सी आउट करता हूँ दोनों की वैल्यूज, देखते हैं क्या आता है। सी आउट मैंने किया एक्स, मैंने एंडल लगा दिया इसमें, मैंने फिर सी आउट किया वाई और एट लास्ट एंड लाइन। देखते हैं क्या देता है। ये तो दोनों को 455 दे रहा है। तो मीन्स ये क्या है, किसी वेरिएबल का एक दूसरा नाम अगर मैं रख दूं तो उसे रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। मीन्स वाई जो है यहाँ पे वो एक्स का रेफरेंस वेरिएबल है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स की वैल्यू है 455 एंड मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल वाई भी बना लिया। तो मैंने एक ही पर्टिकुलर वैल्यूज़ के और एक वेरिएबल का दूसरा नाम भी बना लिया, मैं उससे भी कॉल कर सकता हूँ उसे। तो वो फंडा है रेफरेंस वेरिएबल का। इसे भी यार मैं कॉपी कर देता हूँ। तो रेफरेंस वेरिएबल यार यही है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल है रेफरेंस वेरिएबल भी। ओके गुड टू गो। इसे एलियस भी कहते हैं, तो उससे भी कभी भी डरना मत ही एलियस क्या आ गया, क्योंकि वो भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैं टाइप कास्टिंग की बात करता हूँ। तो सपोज करो यार मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है या मेरे पास फ्लोटिंग वैल्यू है, मेरे को उसको दूसरे डेटा टाइप में बदलना है, तो उसे टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो टाइप कास्टिंग एक भारी सा वर्ड लगता है इंग्लिश का, बट टाइप कास्टिंग आसान है। इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी अगर इंटीजर टाइप वेरिएबल है मेरे को उसमें फ्लोट में चेंज करना है तो मैं उसे कर सकता हूँ। ऐसे ही हम टाइप कास्टिंग करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट, उसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं 55। मैं फ्लोट भी ले लेता हूँ एक बी ले लेता हूँ मैं एंड उसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं 55.55। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं करता हूँ सी आउट और मैं दी वैल्यू ऑफ ए इज, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे फ्लोट, मैं क्या करूँगा अगर मेरे को जिस भी डेटा टाइप में बदलना है मैं उसके आगे क्या करता हूँ, मैं उस डेटा टाइप का नाम लिख देता हूँ एंड ए लिख देता हूँ, मैं उसे हैंडल कर देता हूँ। ओके सो ये क्या करेगा, अभी आप देखना ये क्या करता है। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से इसे लिखता हूँ एक बार।
बार मैं फ्लोट में ये नहीं लगाता, मैं ए को बनाता। ओके ओके, अब देख पा रहे हैं। एक और काम मेरे को करना है, मेरे को बी को इंट की तरीके से दिखाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इन्हें कॉपी कर लेता हूँ दोनों को, क्योंकि मेरे को सेम बी के साथ ऑपरेशन करना है बट डिफरेंट करना है, इस बार इंट में चेंज करना है मेरे को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट कर देता हूँ और मैं इसे बी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे बी को रिप्लेस करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इंट लिख दूंगा। क्योंकि मेरा बी फ्लोट था, मैं उसे इंट में चेंज कर रहा हूँ, देखते हैं यार क्या होता है। ठीक है जी, ओके। तो ये दे रहा है, दोनों तरीके से यार हम कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पेसेस जरूरी है। हम्म, ठीक है, ये हो गया हमारा। टाइप कास्टिंग ऐसे ही कर सकते हो यार, कोई भी डेटा टाइप हो आपको चेंज करना हो इन तरीकों से आप उसे चेंज कर सकते हैं। मेरे को सपोज करो यार तुम कि मेरे को सी आउट कराना है ए प्लस बी, तो मैं क्या करा सकता हूँ, देखते हैं। दी वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम इन पे वर्क करते हैं। सो प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस से आपको अच्छी प्रोग्रामिंग, हमेशा जब भी बच्चे पूछते हैं कि अच्छी प्रोग्रामिंग कैसे, जितनी प्रैक्टिस करोगे एट द एंड आपको बहुत ज़्यादा अपने आप पे कॉन्फिडेंस फील होने लगता है। तो आप मिस्टेक्स करते हैं एंड वही तो चाहिए कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें मिस्टेक्स करके। सो अब मेरे को चाहिए द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, बट इस बार मैं किस तरीके से देने वाला हूँ वैल्यू, मेरा ए इंटीजर है और मैं यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इंट लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे इंट लिख देता हूँ बी एंड मैं एंड लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर दूंगा। बाकी अभी आप आउटपुट देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो क्या आप देख रहे हैं। सो वो एडिशन कर दिया उसने, फ्लोटिंग नंबर दिया एक, तो प्रेसिडेंस फ्लोट का यहाँ पे रहा हमारा, और अगर मैंने इंटीजर में चेंज किया तो वो 100 ही देगा। ठीक है, तो ये भी इजी ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। मैं इसे एक काम कर लेता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को और पेस्ट कर देता हूँ उसमें, टाइप कास्टिंग। ओके ग्रेट। अगला यार हमारा टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा कॉन्स्टेंट्स। सो कॉन्स्टेंट क्या होते हैं हमारे, कॉन्स्टेंट पे भी हमें बात करनी है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ एक बार। ओके, कॉन्स्टेंट क्या है हमारे, तो कॉन्स्टेंट्स हम यहाँ डिफाइन करते हैं किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए। किस वैल्यू को, कॉन्स्टेंट वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए। सो मैं कॉन्स्टेंट जो कि अनचेंजेबल होते हैं, मैं इनिशियलाइज अगर उन्हें प्रोग्राम में करा देता हूँ पहले, तो वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। अगर मैं चेंज कराता हूँ तो फिर मेरे को एरर देने लगता है वो। सो दे आर अनचेंजेबल। अगर मैंने इनिशियलाइज करा दिए तो मैं वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता आफ्टरवर्ड्स। सो ये कुछ इसकी ये डेफिनेशन है। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, दिक्कत मत लीजिएगा। सो अब उसके बाद में, ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यार कॉन्स्टेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। कॉन्स्टेंट इंट ए इक्वल्स टू 10, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। मैं काम करता हूँ इसे ग्लोबल वेरिएबल की तरह डिक्लेयर करता हूँ मेन फंक्शन के बाहर। और अब अगर मैं इंट ए इक्वल्स टू 11 करता हूँ, ओके, कैन यू सी दैट। ओके, मैं सी आउट करके दिखाता हूँ। ए, मैं इसे बिल्ड करता हूँ एक बार।
ये क्या दिखा रहा है आपको? ये 11 दिखा रहा है। एंड इफ अगर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, देख रहे हैं आप? तो ए को मैं चेंज नहीं कर सकता, वो एक कांस्टेंट हो गया। सो कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए हम ए को रखते हैं। उसके बाद यार हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बात करें तो मैनिपुलेटर्स। दो टाइप के यार हमारे मैनिपुलेटर्स होते हैं हमारे पास, एंडल जिसकी मैं बात कर रहा था। तो फॉर्मेटिंग में इनका हमारा काम आता है। हैंडल नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है, और सेट डब्ल्यू होता है हमारा, जो सेट विड्थ भी कहते हैं उसे। तो विड्थ स्पेसिफाई करने के काम आता है। तो एक बार मैं दोनों को ही ले लेता हूँ यार। एक काम करता हूँ, मैं दोनों का प्रोग्राम ले लेता हूँ। ओके, सो देखते हैं। हैंडल तो मैंने आपको यार बता दिया एक बार, बट आपको एस डब्ल्यू बताना है, सॉरी सेट डब्ल्यू। मैं काम करता हूँ, मैं एक इंटीजर डिफाइन करता हूँ, A10 सी आउट करता हूँ मैं, और the value of a is सेट डब्ल्यू करता हूँ मैं 4 रख देता हूँ उसकी विड्थ, और मैं हैंडल भी यूज करता हूँ लास्ट में। तो ये दो मैनिपुलेटर्स हैं, ठीक है ना? सेम चीज़ अगर डिफरेंस दिखाना है, बिकॉज वहाँ पे इतना पता नहीं चलेगा आपको, तो डिफरेंस दिखाना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी विड्थ इस बार 6 कर देता हूँ। तो हैंडल से ये नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। एक बार बिल्ड करके रन करते हैं, देख रहे हैं आप? ये 4 स्पेसेस के बाद आया है आउटपुट। विड्थ सेट कर देता है तो ये इस तरफ शिफ्ट करता है, ठीक है ना? तो ये मैनिपुलेटर्स का काम है। सो आज के लिए यार इतना ही था बाकी, और आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। अच्छा कर रहे होंगे आप सब। इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, फिर आपसे एंडिंग की बात करते हैं। सो अगर यार सीरीज़ नहीं देखी आपने, तो ये सीरीज़ पूरी अच्छी तरीके से होने वाली है। हर एक टॉपिक यार इसमें हम कवर करेंगे, मैं वादा करता हूँ आपसे 100%। सो इस टॉपिक को, हर टॉपिक को हम कवर कर रहे होंगे इसमें, कोई भी टॉपिक हो, एक्स वाई जेड, सी प्लस प्लस का, सो उसे हम कवर करेंगे। इससे जुड़े रहिए यार, इस सीरीज़ में लगातार फिर वीडियोस आने वाली हैं, और आई होप आप सभी को समझ आएगा अच्छे से। एट लास्ट यही कहना चाहूँगा यार, इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ डे बाय डे। एंड इन प्रोग्रामिंग, द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, आपको अगर इम्प्रूव करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। रोज आपको कोई ना कोई प्रोग्राम लिखना होगा, जिससे कि आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, गलतियां करेंगे और सीखेंगे, और दैट इज द बेस्ट पार्ट फॉर यू इन दिस लाइफ। Thank you so much for watching my video, and save this playlist. In future, you will get the better videos of better concepts in C++. Thank you so much, and Jai Hind at last.